Question number 19. The following are the cost data for 3 alternative ways of processing the clerical work for cases brought before LC court system. There are 3 alternative ways how the processing is done in a court. The ways are A. manual, B. semi-automatic and C is fully automatic. Monthly fixed costs are given, occupancy, maintenance contract and equipment lease, and unit variable cost per report, supplies and labor. So we have fixed cost, we have variable cost. Required, calculate the cost indifference points. Indifference points निकालने हमें and interpret your result. We have studied how to find out the indifference point. It's difference in fixed cost divided by difference in variable cost per unit. हमें fixed cost भी दिया है, variable cost per unit भी दिया है. We just have to apply the formula. But the difference is always calculated between two figures. दो figures होते हैं तो हम difference calculate करते हैं. Over here we have 3 alternatives. जब 3 alternative given है, then how will we find out the indifference points? So we will find indifference points of different combinations. A and B का indifference, B and C का, and then A and C का. And after that, we will give our interpretations based on all the 3 indifference points. Second, if the present caseload is 600 cases and it is expected to go up to 850 cases in the near future, which method is the most appropriate on cost consideration? जो हमारे पास वॉल्यूम है अभी 600 है, आगे जाके 850 हो जाएगा. Based on this volume, out of the 3 alternatives, which one we will adopt, we will suggest. तो हमने indifference point का interpretation भी पढ़ा हुआ है. If we are operating at below indifference point, we go for the option with lower fixed cost, so that we are able to achieve our break even at an early stage. If we are operating at indifference point, it does not matter whichever option we choose. We can choose any of the option. We are indifferent on the selection of the options. If we are operating above the indifference point, we choose the option with a higher PV ratio, so that it ensures us higher profits. Okay, so we'll start. Three alternatives are given, alternative A, B and C. We will need, for the calculation of fixed indifference point, we'll need fixed cost and the variable cost per unit. So we have been given the fixed cost. 3 अलग-अलग हमें heads में दिया हुआ है. We do not have to do anything of the heads. किसी भी head of account में हो, it is fixed cost. हमारे लिए उसका एक ही treatment है. So let's sum up and find the total fixed cost. For option A, the total fixed cost are 15,000. For the option B, it is 45,000. And for option C, it is 1,25,000. Then total variable cost per unit. Again, variable cost भी हमें 2 अलग-अलग heads में दिया हुआ है. So we will sum up. A का variable cost हो जाएगा 40 plus 5 into 40, that is 240. B का हो जाएगा 140 and C का 40. Correct? 40? Okay. So now, calculation of indifference points. The calculation shall be done between A and B, B and C and A and C. जो भी तीनों के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, हर एक का हम इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे. A और B का अगर इंडिफरेंस पॉइंट निकाले, द फॉर्मूला ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट बीइंग difference in fixed cost upon difference in variable cost per unit. So A and B का indifference point will be the difference in fixed cost, that is 45,000 minus 15,000 divided by difference in variable cost per unit, 240 minus 140. दोनों का fixed cost का difference which is 30,000 divided by दोनों के variable cost per unit का difference, that is 100.
we have the indifference point as 300 units, where the units over here are reports, 300 reports. तो अगर 300 reports तक हम बनाते हैं, we are indifferent in both the options. A चूज करो या मैनुअली प्रोसेस करो या सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल गिव अस द सेम प्रॉफिटेबिलिटी. 300 से कम बनाएंगे तो वी विल चूज द ऑप्शन विद लोअर फिक्स कॉस्ट. दोनों में से फिक्स कॉस्ट कम है ए का. तो अगर 300 से कम रिपोर्ट्स बनाते हैं, हमारा टारगेट होगा ब्रेक इवन जल्दी अचीव करना. सो वील गो फॉर ए. 300 से ज्यादा अगर बनाते हैं तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है. देन वील गो फॉर द वन विथ हायर पीवी रेशियो. हायर पीवी रेशियो मतलब लोअर वेरिएबल कॉस्ट. जिसका वेरिएबल कॉस्ट कम हुआ वही हमारा पीवी रेशियो ज्यादा देगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम ही होगा. इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी प्रोसेस को, किसी भी मेथड को यूज करो, आप उतना ही फीस चार्ज कर रहे होगे. तो सेलिंग प्राइस विल बी द सेम. सो इफ यू वांट अ हायर पीवी रेशियो, दैट मीन्स अ हायर कंट्रीब्यूशन, योर वेरिएबल कॉस्ट शुड बी लोअर. दोनों में से वेरिएबल कॉस्ट इसका कम है, दैट मीन्स 300 से ज्यादा अगर रिपोर्ट्स बनानी है, देन वील गो फॉर बी. ओके. Similarly, we'll calculate for B and C. 1,25,000 minus 45,000 divided by 140 minus 40. 80,000 upon 100. 800 reports. Similarly, for A and C, 1,25,000 minus 15,000 upon 240 minus 40. 1,10,000 divided by 200. 550. 550 रिपोर्ट्स. ओके. ये तो हमने 3 इंडिफरेंस पॉइंट्स फाइंड आउट किए. हमें इंटरप्रिटेशन भी देने के लिए बोला गया है. नहीं भी बोला जाएगा तो भी यू विल गिव द इंटरप्रिटेशन. ये कैलकुलेशन अधूरा है जब तक कि आप इसको एक्सप्लेन ना कर दो. लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू इंटरप्रेट दिस. This is suppose the number of reports which we are going to process. अगर हम 300 reports process करते हैं, we will be indifferent between A and B. Okay? 300 से कम अगर हम reports process करते हैं, less than 300, when we are operating at less than the indifference point, below indifference point, what option do we choose? कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? लोअर फिक्स कॉस्ट वाला ऑप्शन. लोअर फिक्स कॉस्ट है ए और बी में. ए के अंदर जब हम कम पे ऑपरेट करते हैं तो हमारा एम्बिशन होता है टू अचीव ब्रेक इवन एज सून एज पॉसिबल. उसके लिए हम वो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं जिसका फिक्स कॉस्ट कम हो. सो व्हेन वी आर ऑपरेटिंग एट बिलो 300, हम ऑप्शन चूज करेंगे इन दोनों में से वो, क्योंकि इन दोनों का इंडिफरेंस पॉइंट है 300. तो इन दोनों में से वो ऑप्शन ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा विच हैज लोअर फिक्स कॉस्ट, दैट इज A. इसका मतलब इस रीजन में वी शुड सिलेक्ट A. ओके. इन दिस पर्टिकुलर रीजन हमें A सिलेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट, अगर 300 से ज्यादा हम प्रोसेसिंग करते हैं, इफ वी प्रोसेस मोर देन 300 रिपोर्ट्स, तब A और B में हम किसको सिलेक्ट करेंगे? अगर हम इन दोनों के 300 से ज्यादा रिपोर्ट्स प्रोसेस करते हैं मोर देन द इंडिफरेंस पॉइंट, इन दैट केस वी विल गो फॉर द ऑप्शन विथ हायर पीवी रेशियो सो दैट अवर प्रॉफिटेबिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड. हायर पीवी रेशियो उस ऑप्शन का होगा जिसका वेरिएबल कॉस्ट कम है. इन दोनों में से वेरिएबल कॉस्ट कम है बी का, सो वी विल सिलेक्ट बी. मतलब अगर 300 से ज्यादा आप बनाते हो, सो वी विल ऑलवेज सिलेक्ट बी ओवर ए. ए और बी में से ज्यादा प्रॉफिटेबल हमेशा बी होगा अगर हम 300 से ज्यादा रिपोर्ट्स बनाते हैं तो. दैट मीन्स यहां तक हम ए सिलेक्ट करेंगे. इसके ऊपर जितना भी जाता है हमें बी का सिलेक्शन करना चाहिए. ओके. ए और बी में से अभी हम सी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. अगर सिर्फ ए और बी की बात करें
300 से कम अगर होता है तो हम ए पे रहते हैं, 300 से ज्यादा होता है तो वील गो फॉर बी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज बी एंड सी. अब अगर हम बी और सी की बात करें, देन डिफरेंस पॉइंट इज 800, दिस वन. Now again, if we are operating at below indifference point, that is below 800, again we will go for the option with lower fixed cost. B और C के बीच में से अभी हम चूज कर रहे हैं, B और C में से lower fixed cost किसका है? B का. That means अगर 800 से कम पे हम ऑपरेट करते हैं तो we should go for the option B. इस रेंज में हमें B को सिलेक्ट करना चाहिए ओवर C. विदाउट कंसिडरिंग A हम बात कर रहे हैं, ए को छोड़ के अगर बात करें तो इस रेंज में हमें बी को सिलेक्ट करना चाहिए ओवर सी. सी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए. ओके और इससे ऊपर द वन विथ हायर पीवी रेशियो और लोअर वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज फ्रॉम बी एंड सी वी विल सिलेक्ट सी. मतलब इस रीजन में वी विल गिव अ प्रायोरिटी टू सी ओवर बी. इस रीजन में सी इज मोर प्रॉफिटेबल देन बी. ओके. Then the third combination, A and C. A and C का indifference point is 550. So let's see, 550 से नीचे अगर है, which one will we select? A. यहाँ तक हमें A select करना चाहिए और 550 से ऊपर है तो we should select C. Okay? हमने इन तीनों को इंटरप्रेट कर लिया, तीनों इंडिफरेंस पॉइंट्स को. अब हमें इनका एक कंबाइंड इंटरप्रिटेशन देना है. अभी तो हमने दो दो ऑल्टरनेटिव्स करके इनको इंटरप्रेट किया है. नाउ वी विल रीड ऑल द थ्री टुगेदर. ए बी सी तीनों ऑप्शंस को हम साथ में कंसिडर करेंगे एंड देन वी विल गिव अवर फाइनल इंटरप्रिटेशन. देखिए, इफ वी सी 300 के पहले वाला रीजन, 300 के पहले वाला, तो हमने देखा ए इज मोर प्रॉफिटेबल देन बी और हमने ये भी देखा B इज मोर प्रॉफिटेबल देन C. मतलब C से बेटर है B, B से भी बेटर है A. करेक्ट. हमने इधर C की जगह B सिलेक्ट किया, इवन इधर भी हमने C की जगह A सिलेक्ट किया है टिल 300. तो दैट मीन्स यहाँ पर C तो कहीं आएगा ही नहीं. यहाँ पर हमारे ऑल्टरनेटिव है A और B, दो ही पॉसिबिलिटी है और उसमें से भी हम देख चुके हैं कि B से बेटर है A. तो दैट मीन्स फाइनली हमें इस रीजन में सिलेक्ट करना चाहिए ए. 300 से कम अगर हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हमारा तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा ए. आया समझ में? देन इफ यू लुक फॉर दिस रीजन 300 टू 550. अब अगर 300 से 550 के बीच में देखें तो हमने ए की जगह बी को ऑप्ट किया है. ओवर हियर ए की जगह बी को ऑप्ट किया है, सी की जगह भी हमने बी को ही ऑप्ट किया है. यहां पर हमने सी की जगह ए को ऑप्ट किया है, लेकिन हमें मालूम है ए और बी के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो बी इज बेटर देन ए. भले ही इधर आपको दिख रहा है इस वाले में सी से बेटर ए है, नो डाउट है, सी इज द लास्ट चॉइस, सी से बेटर इज ए. बट ओवर हियर इट इज ऑल्सो विजिबल कि ए से बेटर बी है, इसीलिए हमने ए को इधर तक ही रेस्ट्रिक्ट किया. आया समझ में? तो अगर हम इन तीनों को कंसिडर करें एक साथ तो हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फॉर दिस रीजन विल बी बी. क्लियर है? देन फॉर द नेक्स्ट रीजन 550 टू 800. इस रीजन के लिए देखें तो यहां पर अगेन ए की जगह बी इज बेटर, बी इज बेटर देन ए. इसमें अगेन बी इज बेटर देन सी, सो B is better than A, B is better than C. B सबसे अच्छा है इसका मतलब. तो अगेन इस रीजन में भी हमें B ही सिलेक्ट करना चाहिए. एंड द लास्ट रीजन अबव 800 टिल इंफिनिटी, जितने भी आप रिपोर्ट जनरेट करो अबव 800. A और B में हम देख सकते हैं B इज बेटर वन, मतलब A को तो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे. नाउ कंपेयरिंग बिटवीन B एंड C, C is better than B. So B is better than A, but C is even better than B. तो हम बोल सकते हैं बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल इज C. अगर आप इस रेंज में ऑपरेट कर रहे हो तो हमारे लिए बेस्ट है C को ऑप्ट करना. ये समझ में आया? कोई डाउट?
So this is the final interpretation. So we'll write in explanation or in interpretation part. Level of activity is below indifference point. We will select the option with lower fixed cost to achieve break even early. If the level of activity is at indifference point, any option can be selected. And if it is above indifference point, then we'll select the option with higher PV ratio or lower variable cost per unit. Applying the above logics to the indifference points, we can finally conclude if the level of activity is less than 300 reports, we'll opt for A. If it is from 300 to 800 reports, we'll opt for B. And if it is above 800 reports, we'll opt for C. This is our final interpretation. इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है इफ द प्रेजेंट केस लोड इज 600 केसेस एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 850. Right now we are having a level of activity of 600 cases. 600 falls over here. And it is expected that in near future we are going to come to 850 over here. What method should we select? So, अभी अगर हम इधर हैं 600 पे in this range, that means B is more profitable. So right now we should operate at semi-automatic. B is semi-automatic method. अभी हमें semi-automatically processing करनी चाहिए. But we know that in near future we will be able to reach at an output of 850 reports. So we will try to shift from semi-automatic to fully automatic method over a span of time when we are expecting the reports to the bulk or the load to go to 850 reports. मतलब हम धीरे धीरे सेमी ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे so that जब तक हमारा बल्क 850 हो या 800 से ज़्यादा पहुँचे तब तक हम पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएं. अभी हमारे लिए सेमी ऑटोमेटिक इज बेनिफिशियल बट नियर फ्यूचर में हमारे लिए ऑटोमेटिक इज बेनिफिशियल. सो ग्रेजुअली वी विल ट्राई टू मूव ऑन ऑटोमेटिक फेज. क्लियर है? एनी डाउट्स? लिख लीजिए.